How do you turn it on? Course, you are too, or would like to become one. So what is organic gardening? At its simplest, it is cultivating the soil and growing plants without the use of chemical fertilizers, pesticides, or fungicides. Organic gardeners believe that the key to successful growing is to create a healthy soil. It is a safe and sustainable method of gardening that ensures that the soil is passed on from generation to generation in good heart. Done well,
It is also the most environmentally friendly way to garden and is now widely recognised as such. So why does this matter? It is easy to dismiss your own small patch of soil as unimportant in the greater scale of things, but this just isn't true. An organic garden is a place where a natural balance can establish itself for the benefit of all its inhabitants. From the beneficial soil bacteria that break down the contents of your compost heap and release fertility, through the myriad of insects, the birds, small animals and amphibians, each has a role to play. Organic gardening is not just about growing your own fruit, flowers and vegetables without recourse to artificial fertilizers or pesticides. It's about promoting biodiversity and helping maintain the chain of innumerable life forms in the process. It is extraordinarily complex and interconnected. For example, did you know that ants are symbiotic with violets, cyclamen and coreodalis? There's a fleshy bit on the seeds which they take down to their nests and feed to their young, before taking the seed away to grow elsewhere. So before dismissing anything as a nuisance or irrelevant, we should be aware that everything has a role in the organic garden, even those we would rather be without. When I began organic gardening, we were widely regarded as eccentrics who wanted to turn back the clocks and return to a bucolic 19th century way of gardening. I don't suppose the fact that many of us, myself included, were hippies living an alternative lifestyle helped. But we had all read Rachel Carson's book Silent Spring, and we were frightened by her description of the damage being caused by the widespread use of pesticides. Although she was writing about American agriculture in the 1960s, it was clear to us that what she revealed had far wider implications. It seems extraordinary now that at the time she wrote her book, the chemical DDT was in everyday use in domestic homes and gardens, as well as in agriculture. It was perceived as so safe that it was advertised with a catchy jingle, DDT, good for you and good for me. In sourcing this image for my lecture, I was horrified to find another one for DDT-impregnated wallpaper for use in children's bedrooms. It seems unimaginable now, but it was back in the days when science thought it had simple solutions to every problem, and the phrase side effects had yet to be coined. But in Silent Spring, Rachel Carson uncovered the unforeseen harm these pesticides were having on the environment, particularly on birds. DDT was causing thinning of eggshells, and this was causing reproductive problems and death. Evidence of the damaging effect of this and other chemicals was growing, but the manufacturers had much to lose by going public. Rachel Carson accused them of a cover-up, and public officials of uncritical acceptance of industry claims. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है इंडिया में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है विदाउट यूजिंग ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें कि हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल इनपुट्स का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स
हो सकते हैं। इनके बिना हम जो फार्मिंग करते हैं उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है वो इंडिया में कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ की गई थी लॉर्ड नॉर्थबोर्ने द्वारा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सिक्किम और उत्तरांचल जो दो स्टेट हैं उनको ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि ये जो दो स्टेट हैं सिक्किम एंड उत्तरांचल, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट हैं, या फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट कर ली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हैं। कि हम यूँ बोल रहे हैं कि हमें सिंथेटिक फार्मिंग को छोड़ना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को छोड़ना है, तो फिर कुछ तो इसके बेनिफिट्स होंगे। तो एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को बनाए रखता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है, क्योंकि अगर हम नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कंपोस्ट से मिलते हैं, FIM से मिलते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट से मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे तो वो सॉइल में जाके पोरोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है उनको इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को फार्मर के लिए कम करता है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लेके आते हैं मार्केट से, जो हम खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी तुलना में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम FIM एंड कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ती है। तो ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये एंश्योर करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट है कि ये ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स को रिड्यूस करता है, मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं या केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनका यूज़ करके हमने जो प्रोडक्शन किया है और जिसे हमने फीड किया है, उससे क्या होगा कि एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्शन हमें मिलेगा, उससे ह्यूमन और एनिमल के हेल्थ हजार्ड्स जो हैं वो कम होंगे, और ये जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ भी उसको भी ये कम हार्म करेगा और उसके साथ भी ये इकोलॉजिकली बना रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ऐसे फूड को प्रोड्यूस करता है जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो हायर होगी सिंथेटिक प्रोडक्ट की तुलना में। नेक्स्ट आता है कि मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बना के रखेगा, जबकि अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया तो सॉइल फर्टिलिटी डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ताकि थोड़े टाइम बाद उसको फिर से रीगेन किया जा सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो पॉल्यूशन को अवॉइड करती है और वो नेचुरल सिस्टम के साथ बाइंड करती है, यानी कि वो एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली है, वो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट आते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना है या फिर हमें पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करना है तो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है वर्मी कंपोस्ट, जो कि आइसिनिया फोएटिडा अर्थवर्म के थ्रू बनाया जाता है। अगर हमें NPK की अमाउंट सोइल में अप्लाई करनी है तो हम जनरली वर्मी कंपोस्ट की कम क्वांटिटी के साथ हम उसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और ये बेस्ट सोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग में न्यूट्रिएंट देने का। नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, एक तो सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, दूसरा क्रॉप रोटेशन से जो डिजीजेज और पेस्ट का अटैक है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रीन लीफ मैन्योर, जिससे कि हम मैन्योरिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्योर्स, जैसे डिफरेंट टाइप की मैन्योर्स अपन यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गया। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और बायो फर्टिलाइजर्स। किसी भी क्रॉप में ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर पेस्ट एंड डिजीजेज का अटैक हो गया है तो हम उनको बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करके, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम उनको किल कर सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे बीएम वगैरह का बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को सोइल में इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेनली 4 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ केयर, सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इसे 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ ये बोलता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो सोइल के ऊपर डिपेंड है। जैसी सोइल की हेल्थ होगी वो वैसा ही प्लांट प्रोड्यूस करेगी। मतलब अगर हेल्दी सोइल है तो वो हेल्दी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेगी जो कि एनिमल्स एंड पीपल की हेल्थ को भी अच्छा रखेगी। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड सस्टेन एंड एनहेंस द हेल्थ ऑफ सोइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड प्लैनेट। हेल्दी सोइल प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप्स दैट फोस्टर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड पीपल्स। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारे इकोलॉजी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलते हैं, जिससे और ये बाकी सारी चीज़ों को सस्टेन रखते हैं, जिससे ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो इस रिलेशनशिप पर बेस होती है कि वो फेयरनेस को एंश्योर करे ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ भी अच्छा प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ केयर। ये एक प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट है जिसमें कि सॉइल की हेल्थ और प्लांट की हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और प्रेजेंट में जनरेशन जो चल रही है उसके लिए उसकी हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा सके और उनको अच्छा फूड प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो इकोनॉमिकल ओरिएंटेशन पर डिपेंड होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर डिपेंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिकल ओरिएंटेशन मतलब हुआ कि कन्वेंशनल फार्मिंग अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करेंगे, हम पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है इन सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हार्म होगा। तो इसका मतलब कन्वेंशनल जो है वो इकोनॉमिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड है एंड जो ऑर्गेनिक है वो इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड है। कन्वेंशनल जो फार्मिंग है उसमें हम जीएमओ का यूज़ करते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ नहीं करते। कन्वेंशनल में हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक में हम नेचुरल जो मैन्योर्स हैं, FIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, उनका यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल में हम वीड्स का जो कंट्रोल है वो हर्बिसाइड्स के थ्रू करते हैं और ऑर्गेनिक में हम मैनुअली वीड्स को रिमूव करते हैं या फिर वीड्स का रिमूवल जो है वो हम नेचुरल जो पेस्ट हैं उनके थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल में पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स को यूज़ किया जाता है पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, और ऑर्गेनिक में ये बायोलॉजिकली कंट्रोल किए जाते हैं या फिर बायोपेस्टिसाइड की हेल्प से कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो केमिकल रेजिड्यूज को सॉइल के अंदर छोड़ देती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ही नहीं किया जाता, तो केमिकल रेजिड्यूज जो हैं वो उसमें नहीं होते, तो ये फ्री रहती है। नेक्स्ट आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज से हमारा एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों चीज़ें पॉल्यूट कर रही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूस जो हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं और ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। कन्वेंशनल फार्मिंग में सॉइल की फर्टिलिटी को शॉर्ट पीरियड के लिए मेंटेन किया जाता है और ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं सॉइल की फर्टिलिटी पर, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें ऐसा नहीं है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं लॉन्ग टर्म पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के इंडिया में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के इतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो फिर हर फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा। एक तो इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब उनके जो जोतों का आकार है वो बहुत छोटा है। लगभग 86% फार्मर्स इंडिया में स्मॉल
एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड आता है कि टेक्निकल नॉलेज की कमी होना। फार्मर्स को भी नॉलेज नहीं है कि कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हमें कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस टेक्निक को हम बायोपेस्टिसाइड को हम किस टाइप से कंजर्व करके रखें, हम उनका स्टोरेज कैसे करें, हम उनका यूज़ कैसे करें। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डंग एंड अदर क्रॉप्स वेस्ट यूज फॉर फ्यूल पर्पज। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे कि डंग वगैरह है और उनके वेस्ट को फील्ड में अप्लाई ना करने के बजाय उनको फ्यूल पर्पज के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिससे उनकी भी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है बायो कंट्रोल एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर ओनली फ्यू इंसेक्ट पेस्ट। जिन बायोपेस्टिसाइड के थ्रू हम पेस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं वो सिर्फ कुछ ही इंसेक्ट पेस्ट के प्रति खोजे गए हैं। तो अगर हमारी क्रॉप में ऐसे पेस्ट का अटैक हो गया जिसके प्रति कोई बायोपेस्टिसाइड खोजा ही नहीं गया है तो हम उसे किस टाइप से कंट्रोल करेंगे, ये एक मुख्य चुनौती है। नेक्स्ट आता है कि सिटी में जो गार्बेज है या सिटी में जो डंग मटेरियल है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सोइल की फर्टिलिटी को वापस से डिक्रीज करेंगी और ये ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ पे भी ये दुष्प्रभाव डालेंगी।